Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. Today we will be beginning a new unit, that is Reform Movements, and this unit has two chapters, chapter 8 and chapter 9. Chapter 8 is Socio-Religious Reform Movements, which we will start today, and chapter 9 is a general survey of socio-cultural reform movements. So what all we will see in this chapter 8 is, that is today we will begin with the factors giving rise to the desire for reform. Later on we will see social and ideological basis of the reform and the direction of the social reform. So let's start for today. So what is this chapter about? This chapter is about the reform movement, that is movement for the changes. Changes where? Changes in the society and changes in the religion. So we will see the features, the characteristics of these socio-religious reform movements. So first topic is your factors giving rise to desire for reform. ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों में ये विश पैदा हुई, ये इच्छा पैदा हुई कि हमको बदलाव चाहिए, वी नीड द रिफॉर्म. Okay, so the dawn of the 19th century witnessed the birth of a new vision, a modern vision among some enlightened sections of the Indian society. That is 19वीं सदी का जो सूरज उग रहा है वो अपने साथ एक नई विजन, नई सोच भी लेके आ रहा है. ठीक है, एक नई सोच का जन्म हो रहा है. ये जो मॉडर्न विजन है, अब ये जो नई सोच है ये किस में आ रही है? विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? In the enlightened sections of the society, that is who are educated people, who have received knowledge or received education both traditionally and in the western countries as well. ठीक है, so this process of reawakening sometimes but not with full justification defined as renaissance. अब ये जो जागरूकता आ रही है, reawakening हो रही है, इसको कहते हैं renaissance. Okay, that is changes coming in the society. Okay, the reforms coming in the society, the revolution for that reform. But sometimes this had some undesirable byproducts as well. लेकिन ये जो reform movements हुए हैं इनके कुछ ऐसे भी results रहे हैं जो आज तक हम face कर रहे हैं. ठीक है, which have become as much a part of the daily existence in the whole of the Indian subcontinent as have the fruits of these reform movements. Basically these reform movements had both aspects, the positive and the negative as well. So positive aspects was कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया. ठीक है, सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आए. ठीक है, मॉडर्न चेंजेस आए. ऑर्थोडॉक्सी और कंजर्वेटिज्म से आगे बढ़ के लोगों ने थोड़ा मॉडर्न अप्रोचेस को फॉलो किया. बट सेम साइमल्टेनियसली देयर वर सम डिविजन्स इन द सोसाइटी विच वर विटनेस, दैट इज लोगों के बीच में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गया. रिलीजन को लेके स्पेशली थोड़ा और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया. द परफेक्ट एग्जाम्पल इज हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी. ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो एक एनमिटी आ गई थी, जो एक हेट्रेड आ गया था, वो भी कहीं ना कहीं ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का ही रिजल्ट था. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज assess the factors which led to the reformist and the revivalist movements in the 19th century in India. तो आपको वो factors को assess करना है जिससे ये reformist और revivalist movements हुए हैं 19th century इंडिया में. So you have to focus that we are talking about the 19th century here. Okay. Okay. So what is the impact of the British rule? First factor is the impact of the British rule. So it says that most of the earlier invaders who had come to India settled within its frontiers, were either absorbed by its superior culture or interacted positively with it and had become part of the land and its people. What they are saying is, इससे पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले जितने भी यूरोपियन पावर्स आए हैं इंडिया में, they settled, they started treating India as their own land, as their own country. Some they got so absorbed in it that they become the inherent part of this land only. India का ही वो completely part बन गए. They married here, they had children here and they then spent most of their lives here. Okay, यहाँ का जो culture था, they were absorbed into that and they interacted positively with it. That is, they interacted with the indigenous people of the India positively. But if we talk about the British conquest was different. ये different है कैसे? It came at a time when India, contrast to an enlightened Europe of the 18th century, affected in every aspect by science and scientific outlook. What is happening? ये Britishers तब आए हैं जब इंग्लैंड में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में there was a revolution going on regarding the scientific outlook. That is, we have to analyze the things in a scientific manner. Innovations हो रहे हैं, discoveries हो रही है, inventions हो रहे हैं. ठीक है, but
when they came to India, they saw a stagnant civilization. That is, यहाँ पे सब कुछ रुका हुआ है, civilization में अभी modernity नहीं आई है. ओके. एंड एक स्टैटिक और डेकेडेंट सोसाइटी है, दैट इज़ डिक्लाइनिंग सोसाइटी है. ना तो यहाँ साइंस को लेके बहुत ज़्यादा कोई अवेयरनेस है. एंड इफ़ यू सी दैट इन 1760 the industrial revolution started coming up in the western countries or the European countries, whereas if you talk about India may has stagnation. Okay, we are still attached to our orthodox traditions, our religion, especially religion का बहुत ज़्यादा dominant role है. And society is segregated, society में caste के basis पे बहुत ज़्यादा division है, not just in Hindus but in among other sections as well. So ये था impact of British rule. ठीक है. सेकेंड इज सोशल कंडीशंस राइट फॉर रिफॉर्म. अब अच्छा एक मिनट, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. अब इससे इंडियन एनलाइटेंड सेक्शंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है? दैट इज व्हेन दे सॉ दैट देयर इज सच अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दैट इंडिया में सॉरी इन द यूरोपियन कंट्रीज इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वेयर इज इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है. सो दे स्टार्टेड एनालाइजिंग इट दैट दिस इज समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग एंड वी नीड टू चेंज इट. ओके. सेकेंड इज सोशल कंडीशंस राइट फॉर रिफॉर्म. अब कुछ ऐसी सोसाइटी में कंडीशंस क्रिएट हो गई है जो रिफॉर्म को बुलावा दे रहे हैं कि अब तो कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो है वो लाने पड़ेंगे. तो सबसे पहले उसमें है रिलीजियस एंड द सोशल इल्स. दैट इज धर्म को लेके और कुछ जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं जिसको हम सोशल ईविल्स भी कहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसी कुरीतियाँ चली आ रही हैं तो वो डिमांड कर रही हैं कि हाँ अब उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. सो इंडियन सोसाइटी इन द 19th century was caught in a vicious web created by the religious superstitions and social obscurantism. That is, अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो गया है इंडिया में. लोग बस इसी में उलझे हुए हैं. एंड सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब होता है दैट द प्रीस्टली क्लास, दैट इज़ ये जो पंडित लोग होते हैं एंड द प्रीस्ट ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने लोगों को बिल्कुल बांध के रखा हुआ है इन अंधविश्वास में ताकि वो सोसाइटी में डेवलप ना कर पाएँ. ओके, अपने लेवल को, अपने स्टेटस को ना बढ़ा पाएँ, ऐसा मतलब ऐसा मानना है. ठीक है. हिंदुइज्म हैड बिकम स्टीप्ड इन मैजिक एंड सुपरस्टिशन. और हिंदुइज्म कुछ नहीं, सिर्फ वो अंधविश्वास का और मैजिक, दैट इज जो टोना टोटका आप बोलते हैं, बस उसी में सिमट के रह गया था. सो प्रीस्ट एक्सरसाइज एन ओवरवेलमिंग एंड इंडीड अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल. अब ये जो प्रीस्ट लोग थे, ये जो पंडित हुआ करते थे, इनका लोगों के माइंड पे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का कब्जा था, यू नो. सो दे वर लाइक डिक्टेटिंग देम दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू. ठीक है. आइडोलेट्री एंड पॉलिथिज्म हेल्प टू रेनफोर्स देयर पोजीशन. अब मूर्ति पूजन, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में टेम्पल्स में मूर्ति पूजन को बहुत ज़्यादा, दैट इज़ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टैचूज होते हैं, उनकी पूजा की जाती है और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है. एंड पॉलीथिज्म, दैट वी हैव मल्टीपल गॉड्स. जिन्होंने भी ये लाइफ ऑफ पाई देखी होगी उन्होंने एक डायलॉग सुना होगा इरफान खान जी का, इंडिया हैज़ 33 मिलियन गॉड्स. कैन यू इमेजिन 33 मिलियन गॉड्स हैं इंडिया में. 33 मिलियन तो पॉपुलेशन होती है कितनी छोटी छोटी कंट्रीज़ की. ओके, सॉरी, छोटे छोटे स्टेट्स की पॉपुलेशन होती है. सो इंडिया इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद दीज थिंग्स. और ये जो आइडोलेट्री है, ये पॉलिथिज्म है, इन्होंने ये जो रिलीजियस प्रीस्ट थी, इनकी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके रखा हुआ था. ठीक है, इनका डोमिनेशन इन्होंने बना के रखा हुआ था. एंड द मोनोपोली ऑफ द स्क्रिप्चरल नॉलेज. अब ये क्या कहते थे आजकल जो भी, अब ये जो पूरी प्रीस्टली क्लास है, व्हाट दे से दैट वी हैव द नॉलेज ऑफ द वेदास. हमें तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं, वेदास कह लीजिए, या फिर ये आपके जो एपिक टेक्स्ट हैं, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है हमारी, तो हमें तो इनकी नॉलेज है. ये संस्कृत में इनको सारे श्लोक्स याद होते हैं, बट डू दे इवन नो द मीनिंग ऑफ देम. सो ये बिल्कुल उन्होंने सोसाइटी में फैला के रखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो हायर नॉलेज है, स्टैंडर्ड नॉलेज है, वो हमें ही है, बिकॉज वी नो द स्क्रिप्चर्स, वी नो द वेदास एंड द सिमिलर रिलीजियस टेक्स्ट. सो इट इम्पार्टेड अ डिसेप्टिव कैरेक्टर टू ऑल द रिलीजियस सिस्टम. सो बेसिकली रिलीजन का चाहे मोटो कुछ और हो, ठीक है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट की जो टीचिंग्स हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग. अब आप भगवत गीता को ले लीजिए तो बहुत सारे लेसन्स हैं जो आप पढ़ के, जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन. बट व्हाट हैपेंड
with gradually with the moving society, what happened that these priestly class, they started using these scriptures for their own benefits, deriving different meanings. ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशंस उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो एक डिसेप्टिव कैरेक्टर उन्होंने ऐड कर दिया रिलीजियस सिस्टम में. ठीक है, धोखा देने लगे वो इन रिलीजियस टेक्स्ट को यूज करके. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द रिलीजियस इन द सोशल इल. सो इट वॉज डिमांडिंग कि अब इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ द वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट. अब वुमेन का हाल तो आप सबको पता है. नाउ अटेम्प्ट्स टू किल फीमेल इन्फेंट्स, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो आज भी फॉलो होता है. तो उस टाइम पे तो आप सोच लीजिए कितना किया जाता होगा कि लड़की पैदा हुई नहीं कि उसको तभी मार दिया एट बर्थ. तो ये कोई कॉमन, ये बहुत ही नॉर्मल बात थी, बहुत ही कॉमन था. चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डीप रूट्स थे सोसाइटी में, बहुत ही कॉमनली इसको भी फॉलो किया जाता था. प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग थी बंगाल में. प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, दैट इज मल्टीपल मैरिजेस, स्पेशली वन हस्बैंड हैविंग मल्टीपल वाइफ्स. ये भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी, बहुत ज़्यादा फॉलो हो रही थी. और बंगाल में कुलिनिज्म के अंडर इवन ओल्ड मैन टुक वेरी यंग गर्ल्स एज वाइफ्स. कुलिनिज्म एक्चुअली, ये थोड़ा मैं आपको ऐसी ब्रीफ में बता देती हूँ. एक ये बंगाल का काइंड ऑफ, स्पेशली बंगाल में फॉलो किया जाता है. इसके अंडर क्या है, कुल आपको पता होगा, कुल कहते हैं फैमिली को. ठीक है, कुल आप सबका को नॉलेज होगी इसके बारे में. कुल मीन्स फैमिली. सो ये कुल से ही बना है कुलिनिज्म. दैट इज वी हैव टू मेंटेन द हायर कास्ट और द हायर क्लास ऑफ आर कास्ट. जो हमारा स्ट्रेटा है, जो हमारी हायर पोजीशन है, उसको हमको मेंटेन करके रखना है. सो यू डोंट हैव टू गो डीपर इनटू दिस. या फिर जनरली लोगों में ऐसी सोच थी अपने गर्ल्स को लेके दैट हमें अपनी गर्ल को, हमें अपनी डॉटर को सिर्फ हायर क्लास में ही मैरी करना है. तो इस चक्कर में क्या होता था दैट अब क्लास तो वो लिमिटेड है, लिमिटेड पीपल है. ठीक है, तो इस चक्कर में एक ही हस्बैंड के मल्टीपल वाइफ्स हो जाते थे बिकॉज दे वर इन डिमांड. उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इफ़ दे बिलोंग टू दी हायर क्लास और दी हायर कास्ट. सो इवन द ओल्ड मैन, मतलब बूढ़े बूढ़े लोग भी ज़रा सी बच्चियों से जो है शादियाँ कर रहे थे अंडर कुलिनिज्म. तो ये ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन था आपका कुलिनिज्म. नाउ व्हेन द हस्बैंड्स डाइड दे वर एक्सपेक्टेड टू कमिट सती. अब ये तो आपको पहले से पता है दैट सती, दैट इज जौहर, जंपिंग इनटू द बर्निंग फायर. सो ये सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सोशल इविल भी फॉलो हो रहा था. इसको राजा राम मोहन ने बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है एज अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र. ये हर शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है एक मर्डर है. ठीक है, एक हत्या है. और अगर इससे भी वो बच जाएं, ठीक है, इस सती से भी बच जाएं, सो देयर कंडीशंस इन द सोसाइटी, दे वर वेरी मिजरेबल एंड ह्यूमिलिएशन दे फेस्ड. दैट इज दे यूज टू गेट टॉन्टेड. ठीक है, उनको बात बात पे उनको ताने देना दैट यू आर अ अनलकी पर्सन, यू ब्रॉट बैड लक टू अ फैमिली. तो ये बहुत ही नॉर्मल हुआ करता था एंड उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में. दे वर फेस्ड विद ह्यूमिलिएशन. नेक्स्ट इज योर कास्ट प्रॉब्लम. कास्ट प्रॉब्लम में क्या है आपका, सेग्रीगेशन. सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे सेग्रीगेशन, दैट इज क्लासेस बना दें आप, हायर पे हो, हम मिडिल पे हैं, देन ये लोअर पे हैं. सो हायरार्किकली ऑर्डेन्ड, एक हायरार्की क्रिएट कर दी है. बॉटम में सबसे कौन है यहाँ पे, अनटचेबल्स और द शेड्यूल्ड कास्टेस. ओके, नाउ the untouchables suffered from the numerous and the several disabilities and the restrictions. So you very well know for a long time, very long time, and even today if you go into the remote places in the villages especially, that is the untouchables or the lower castes, they face a lot of discrimination. और ये उस टाइम पे भी हो रहा था. ठीक है, उन पे बहुत सारी restrictions थी, जैसे आप ये टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बैठ के हमारे सामने खाना नहीं खा सकते, आप इस कुएं से पानी नहीं पी सकते. सो दीज काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन देम. आप स्कूल नहीं जा सकते, आप एडुकेशन नहीं ले सकते. लॉट एंड लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस वर प्रिवेलिंग इन दैट टाइम अगेंस्ट दी lower social classes. Okay. So in modern times it became a major obstacle in the growth of the United Nation feeling and the spread of the democracy. अब ये जाहिर सी बात है कि अब जब डिवीजन होगा सोसाइटी में तो यूनाइट कैसे होंगे, किसी एक कॉज के लिए. और यही प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से एक नेशनल फीलिंग नहीं आ पाई थी अभी तक. ठीक है, 19th सेंचुरी में भी अभी तक लोग यूनाइट होके एक साथ मिलके इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ रहे हैं. एंड उसका कहीं ना कहीं ये सेग्रीगेशन सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे जो था वो एक रीज़न था.
It may also be noted that caste consciousness, particularly with regard to marriage, prevailed also among the Muslims. अब ये सिर्फ हिंदूज में नहीं था मैरिजेस को लेके जो कॉन्शियसनेस थी कि हमें तो अपनी ही क्लास में मैरी करना है, अपने ही कुल में मैरी करना है, ठीक है। ये चीज़ मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, सिख्स में भी फॉलो किया जाता था, बट हाँ इतना इंटेंस नहीं था, इतना वायलेंट फॉर्म में नहीं था जितना हिंदू रिलीजन में फॉलो किया जा रहा था। सो अंडर अ रिजिड कास्ट सिस्टम सोशल मोबिलिटी वॉज चेक्ड, सोशल डिविजन्स ग्रू एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव वॉज थ्वार्टेड। दैट इज, इतना जो टफ कास्ट सिस्टम बना दिया है ना, दैट आप अनटचेबल हो तो आप ये टेम्पल्स में नहीं जा सकते, आप एडुकेशन नहीं ले सकते, या अगर आप ब्राह्मण हो, सिर्फ अगर मैं सभी सेक्शंस की बात करूँ तो अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑक्यूपेशन में रहना है, आपको तो वो पंडितगिरी ही करनी है। अगर आप आर्टिजन हो, अगर आप क्षत्रिय हो, या फिर तो आपको उसी ऑक्यूपेशन में रहना है। तो ये टफ लाइंस क्रिएट कर दी थी, रेस्ट्रिक्शंस कर दी थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ओनली। वो सोशल मोबिलिटी का मतलब है एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में नहीं मूव कर पाते थे, या एक लोअर क्लास हायर क्लास में नहीं मूव कर पाती थी, ठीक है। एंड इसी तरीके से लोगों के जो इंडिविजुअल एस्पिरेशन थे, उनके कुछ जो ड्रीम्स हुआ करते थे, अगर कोई चाहता भी था कि मुझे कुछ चेंजेस लेके आने हैं, लेट्स से इफ priestly man is there and he is restricting his son to not टीच, तो ये एक कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इनिशिएटिव को रोक रहे हैं। दैट उनका बेटा बनना चाहता है टीचर, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, आपको तो ये संस्कृत के श्लोक्स पढ़ के मंदिरों में बैठ के पूजा अर्चना करनी है, ठीक है। सो इंडिविजुअल इनिशिएटिव वाज थ्वार्टेड। सोसाइटी में इतना रेस्ट्रिक्शंस थे कि लोग करने ही नहीं देते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर ऑपोजिशन टू द वेस्टर्न कल्चर। So establishment of the colonial rule in India was followed by the systematic attempt to disseminate colonial culture, ideology and the dominant cultural current. तो अब आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियंस तो है वो सोशली बहुत ही बैकवर्ड हैं और इन्फीरियर क्लास है, और हमें इनको टीच करना है, सिखाना है, मॉडर्न तरीके इनको सिखाने हैं। और इसके चक्कर में इन्होंने अपना कल्चर जो है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, ये लोगों पे थोपना शुरू कर दिया। तो इसके अगेंस्ट में थोड़ा ऑपोजिशन मिला, ठीक है। सो जब ये अपना कल्चर फैला रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी बेसिकली फैला रहे हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसको ऑपोजिशन मिला इंडियन पीपल से। सो फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ द इंट्रूजन ऑफ द कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी, अब लोगों में थोड़ा सा डर बैठ गया है कि एक नया कल्चर आके हमारे इंडिजिनियस कल्चर पे अटैक कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, और उनकी जो सोच है वो भी डिफरेंट है, उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, री इन्विगरेट करना है, ठीक है, रिवाइव करना है, फिर से जीवित करना है उनको। सो दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। अब जो अभी तक ट्रेडिशनल कल्चर शायद उतना प्रेवलेंट नहीं था, दैट इज़ जो लोग ये भूल गए हैं कि हमारे यहाँ कौटिल्य जैसे लोग पैदा हुए हैं, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, ठीक है। सो न्यू अवेयरनेस अमंग द एनलाइटेंड इंडियंस, अब लोगों में एक नई जागरूकता आ रही है, स्पेशली एनलाइटेंड इंडियंस में। सो इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय फॉरेन पावर गेव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग। अब क्या है, लोग ये नहीं चाहते कि एक फॉरेन पावर आके, एक वेस्टर्न कल्चर आके हमको डिफीट कर दे, ठीक है। अब देखिए, कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट तो पहले इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ, हार तो गए हैं। 1857 के रिवोल्ट में इंडिया बैडली वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। तो ये जो इम्पैक्ट था एक वेस्टर्न कल्चर का, और एक ये जो ट्रुथ था कि हाँ, इनसे हार गए हैं, एक फॉरेन पावर से हार गए हैं, तो लोगों में एक नई सोच आ रही है कि ये चीज़ अब आगे कंटिन्यू नहीं करनी है। So there was an awareness that the vast country like India had been colonized by a handful of foreigners. और ये ट्रुथ भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इतनी बड़ी कंट्री को एक चुनिंदा कुछ लोगों ने आके बस कॉलोनाइज कर लिया, ठीक है, उस पर अपना हुकूमत चलाना शुरू कर दिया है। बिकॉज ऑफ द वीकनेस विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड द कल्चर, क्योंकि कमज़ोरी हमारे ही सोसाइटी में है, ठीक है, प्रॉब्लम हमारी ही सोसाइटी में है। So for some time it seemed that India had lagged behind in the race of civilization, और काफ़ी टाइम तक इस ट्रुथ को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि काफ़ी टाइम से हमारा जो देश है वो सिविलाइजेशन की रेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। जबकि आप जानते हैं, इंडिया वॉज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस टुक बर्थ। मेसोपोटामियन वॉज द फर्स्ट, और उसके बाद जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सेकेंड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो देखिए,
एक ऐसा लैंड जहाँ पे सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है, अर्ली सिविलाइजेशन का, और वही सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में रुक गया हो, तो इसका भी जो रियलाइजेशन है वो लोगों को हो रहा है कि सोसाइटी स्टेगनेंट हो गई है. नाउ सम इंग्लिश एडुकेटेड बंगाली यूथ डेवलप्ड अ रिवल्जन फॉर द हिंदू रिलीजन एंड कल्चर. सो व्हाट हैपेंड, अब ये कुछ इंग्लिश एडुकेटेड बंगाली, दैट इज़ जो लोग जिन्होंने इंग्लिश में एडुकेशन रिसीव की है, जो बंगाली यूथ है स्पेशली, ये हिंदू रिलीजन को अब थोड़ा थोड़ा सा डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं. इन्होंने अपने ओल्ड पुराने रिलीजियस आइडियाज़ को, ट्रेडिशंस को गिव अप कर दिया, ठीक है, उनको मानने से मना कर दिया, एंड डेलिबरेटली अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस मोस्ट ऑफेंसिव टू द हिंदू सेंटिमेंट्स. और कुछ उन्होंने ऐसी आदतें अपना ली जो कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ थी, ठीक है. दैट इज़ ड्रिंकिंग वाइन एंड ईटिंग बीफ, शराब पीना और बीफ कंज्यूम करना, दैट इज़ मीट, काउ मीट कंज्यूम करना. So this indeed was the response, was varied, but the need to reform social and religious life was a commonly shared conviction. अब ये response ऐसा नहीं था कि सारे जितने भी यूथ से उन्होंने ये करना शुरू कर दिया. इस रिलीजियंस के अगेंस्ट में, ओल्ड ट्रेडिशंस के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स है वो अलग था, अलग सेक्शंस में, ठीक है. कुछ अपने तरीके से, कुछ किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ कैसे, अब जैसे आपने देखा कुछ वाइन पी के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बट एक कॉमन शेयर्ड कन्विक्शन है, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है. Okay, so during the last decades of the 19th century, the rising tide of nationalism and democracy also found expressions in the movements. अब जब आप 19th century के कुछ आखिरी के दशकों में आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि एक राष्ट्रीयता की भावना भी लोगों में नज़र आ रही है, नेशनलिज्म की, और डेमोक्रेसी दैट इज़ लोकतंत्र की भी इच्छा लोगों में पैदा हो रही है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी होना चाहिए. इन मूवमेंट्स में वो नज़र आ रहा है. टू डेमोक्रेटाइज द सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ द इंडियन पीपल, दैट इज़ जो लोगों का पुराना कंजर्वेटिव आउटलुक है रिलीजन को लेके, तो उसको बदलना है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे, उनको हमें डेमोक्रेटाइज करना है, दैट इज़ लोकतंत्र लेके आना है, ठीक है. ओके, सो दिस वाज अबाउट योर सोशल कंडीशंस, दिस वाज अबाउट योर फैक्टर्स गिविंग राइज टू द डिजायर फॉर रिफॉर्म. नेक्स्ट आपका है द सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द रिफॉर्म, दैट इज कौन से सेक्शन है सोसाइटी के जो इन रिफॉर्म मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, दैट इज उनकी विचारधारा क्या है. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. Which sections of the society participated in the social and religious reform movements of the 19th century? Also highlight their ideologies for the reforms. ठीक है, एक तो बताना है कौन से सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी क्या आइडियोलॉजीज रही हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिडिल क्लास सेक्शंस ने पार्टिसिपेशन दिया है, अपना मिडिल क्लासेस का बेस रहा है. सो सोशल बेस फॉर द रीजनरेशन सीन इन द 19th century was the newly emerging middle class and the educated, both traditionally and the western educated intellectuals. कौन से लोग हैं जो एडुकेटेड हैं, मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्रेडिशनली दैट इज़ इंडिया में ही रह के उन्होंने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस अपने स्कूल्स में, पाठशालाज में जाके एडुकेशन रिसीव की है, या फिर वो बाहर की कंट्री से, स्पेशली ब्रिटेन, लंदन, इन सब जगहों से पढ़ के आए हैं. But there was a significant contrast between the broadly middle class ideals derived from a growing awareness of contemporary developments in the West and a predominantly non-middle class social base. लेकिन यहाँ पे भी आपको एक contradiction देखने को मिलेगा कि ये जो लोग एडुकेटेड लोग हैं, मिडिल क्लास के अंदर ही आपको जो कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा वो ये है कि जो एडुकेटेड हैं उनकी अपनी एक नई सोच है, ठीक है, उनकी डिफरेंट परसेप्शंस हैं उनके, वेयर जो नॉन मिडिल क्लास आपका सोशल बेस है, अब इसमें सिर्फ मिडिल क्लास नहीं इन्वॉल्व थे, इसमें कुछ हायर क्लास के लोग भी इन्वॉल्व थे, जो एडुकेटेड भी थे, वो भी एडुकेटेड थे, लेकिन वो हायर क्लास से बिलोंग करते थे, या फिर और आप थोड़ा लोअर क्लास से चले जाएं तो इनके साथ इनकी सोच का जो है कहीं ना कहीं एक टकराव हमें देखने को मिलेगा. ओके, नाउ द 19th century intelligentsia searched for its model in the European middle class, which as it learned through Western education had brought about the great transformation in the West. What is happening, ये जो 19वीं सदी के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे सर्च फॉर इट्स मॉडल. अब उनके लिए एक आइडियल कंट्री या आइडियल स्टेट क्या है, जैसा कि एक यूरोप का स्टेट है या यूरोप का जो मिडिल क्लास है, ठीक है. अब इन्होंने क्या सीखा अपनी वेस्टर्न एजुकेशन से, दैट वेस्ट में कितना बदलाव आ गया है, कितने चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, फ्रॉम मिडाइवल टू मॉडर्न टाइम्स,
थ्रू मूवमेंट्स लाइक रेनेसा, लोगों ने वहाँ पे रेवोल्यूशंस किए। आपने देखा है अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ है। सो रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन और द रिफॉर्म, डेमोक्रेसी को लेके रेवोल्यूशन हुआ है अमेरिका में, राइट। तो इन्होंने जब ये चीज़ देखी कि वर्ल्ड में, ग्लोब में इस तरीके के चेंजेस लाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ इंटेलिजेंशिया ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया डिड नॉट ग्रो फ्रॉम ट्रेड और इंडस्ट्री। अब ये जो लोग हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है एजुकेटेड लोगों का, ये ना तो ट्रेड का बैकग्राउंड है ना ही इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, ओके, बिकॉज दे वर फॉर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एजेंसीज। अब ट्रेड और इंडस्ट्री तो सारा ब्रिटिश के अंडर में चल रहा था। देयर रूट्स ले इन द गवर्नमेंट सर्विस और द प्रोफेशंस ऑफ द लॉ, एजुकेशन एंड जर्नलिज्म। ये कौन लोग थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, बैकग्राउंड क्या था, लॉ से बिलोंग करते थे, ये टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे, दैट इज न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स थे, राइटर्स थे, ओके, एंड द मेडिसिन with which was often combined some connection with land। अब ये लोग तो इंडिजिनस लोग हैं, इनका तो अपनी लैंड से कनेक्शन होगा, राइट। सो दे वर दोज पीपल, ये लोग ट्रेड से और इंडस्ट्री से ना जुड़े होके इस फील्ड से जुड़े थे, लॉ, एजुकेशन, जर्नलिज्म और दी मेडिसिन, ठीक है। सो दिस वॉज योर मिडिल क्लास बेस। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, दैट इज क्या आइडियोलॉजी है। So what gave these reform movements an ideological unity were rationalism, religious universalism and humanism। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी अभी फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप मीनिंग है, वर्ड्स कुछ वोकेबलरी थोड़ी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट बी फोकस्ड, ओके। सो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आ रहे हैं, इनमें किस सोच की यूनिटी है, दैट थिंकिंग जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। रैशनल का मतलब है लॉजिक अप्लाई करो, रीजनिंग अप्लाई करो, हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, थिंक अबाउट दैट। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, दैट इज ये जो इतना डिविजन हो गया धर्म के नाम पे, ये धर्म वो धर्म, जबकि रिलीजन की जो यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। दैट इज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर रिलीजन में सेम है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं फ्रेटर्निटी, दैट इज़ भाईचारा, ब्रदरहुड। कोई भी ऐसा रिलीजन क्या है जो ये कहे कि नहीं आप भाईचारे से मत रहिए, ठीक है, या कोई भी ऐसा रिलीजन है जो कहे कि आप वॉर कीजिए। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो होते हैं बट उनकी कुछ टीचिंग्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। देन ह्यूमैनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, मानवता को इम्पोर्टेंस दो आप, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट giving importance to your religion or your caste or your land, give importance to humanity, that first of all you are a human being and later you belong to some country or you belong to some class, okay. So Raja Ram Mohan Roy, very important person, firmly believed in the principle of causality, linking the whole phenomenal universe and demonstrability as the sole criteria of truth। very important, इस causality को casuality मत पढ़ लेना, ओके। सो क्या कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी, दैट जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई कारण है, ठीक है। एंड ट्रुथ, सत्य सिर्फ और सिर्फ वही है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सको, जिसको आप प्रूव कर सको। ये राजा राम मोहन जी का कहना है, बहुत ही पावरफुल लाइन्स है, राइट। सो दिस इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, ये इंटेलेक्ट चल रहा है, ठीक है। रैशनल थिंकिंग की बात हो रही है। अक्षय कुमार दत्त हैं आपके, अच्छा ये इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सो लेट्स हैव अ लुक इन ब्रीफ हियर। नाउ अक्षय कुमार दत्त जी कहते हैं दैट रैशनलिज्म इज आवर ओनली प्रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रैशनलिज्म ही हमारा टीचर है, प्रिसेप्टर इज द टीचर, कि लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग ही आपको कुछ सिखाती है। सो ऑलवेज फॉलो द लॉजिक। held that all the natural and the social phenomena could be analyzed and understood purely by mechanical processes। वो कह रहे हैं कि जो भी होता है संसार में, जो भी हो रहा है, चाहे वो नेचुरली हो रहा हो, चाहे वो सोशल फिनोमेना हो, इसको आप डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बारिश होती है तो सबको पता है बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, भाई एवापोरेशन होता है वाटर बॉडीज से, फिर वो कंडेंसेशन होता है, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश हो जाती है। सिमिलरली वाई सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये भी सबको पता है,
ठीक है। सिमिलरली अगर आप सोशल फिनोमिना की बात करें, जैसे सोशल फिनोमिना में आप एग्जांपल ले लीजिए मैरिजेस, लोग शादियां क्यों करते हैं, तो भाई अपने कुल को बढ़ाने के लिए शादियां करते हैं। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई उसके लिए शादी करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सदियों से चला आ रहा है, और आप इसका एक प्रॉपर रीज़न दे सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर ये क्यों होना शुरू हुआ। ठीक है, सो इसी तरीके से चीज़ों को एनालाइज कीजिए, उसके पीछे के रीजंस को ढूंढिए। दे दस नीड यूज अ रैशनल अप्रोच टू स्टडी ट्रेडिशन। अब जो भी ट्रेडिशंस हैं हमारे, जो भी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देम ब्लाइंडली। दे इवेलुएटेड द कंटेम्प्रेरी सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल यूटिलिटी टू रिप्लेस फेथ विद रैशनैलिटी। कह रहे हैं कि जो भी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही हैं अभी सोसाइटी में, उन्होंने कहा आप ये देखने की कोशिश कीजिए आखिर सोसाइटी में उनका यूज़ क्यों है। फॉर एग्जाम्पल हवन होते हैं, ठीक है। अब इसकी दो चीज़ें, दो लॉजिक्स बताए जाते हैं। लॉजिक्स तो एक ही बताया जाता है जो मुझे पता है, बाकी तो सारा जो है रिलीजन पे डाल दिया जाता है। तो लॉजिक क्या दिया जाता है, जो जहाँ तक मैंने सुना है, कि हवन इसलिए कराया जाता है कि एनवायरनमेंट जो है आपका थोड़ा प्योरीफाई हो जाए। जो भी आप आग वगैरह जलाते हैं, उसमें लकड़ियाँ जलाते हैं और जो सामग्री सारी यूज़ की जाती है, उससे क्या है एनवायरनमेंट के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो किल होते हैं और आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा प्योरीफाई हो जाता है। तो ये एक आपको पता चल रहा है कि ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये जो सदियों से चला आ रहा है, इसका एक और रीज़न हो सकता है, एक लॉजिक हो सकता है। जो लोग सोचते ही नहीं है, जिसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, उनको तो बस ये है कि हम हवन कराएंगे तो हमारे साथ जो जो हमको चाहिए, जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, हमारा तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा गॉड के साथ। तो ज़रूरी है कि आप उसकी यूटिलिटी देखिए, आखिर वो यूज़ क्यों हो रहा है, एंड देन उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, सो एक्सप्लेन, रिप्लेस फेथ विद रैशनैलिटी। आप जो भी आपका फेथ है, ठीक है, उसको रैशनैलिटी से रिप्लेस कीजिए। दैट इज गिव इम्पॉर्टेंस टू द रैशनल थिंकिंग। As a consequence, in the Brahma Samaj, the infallibility of the Vedas was repudiated. अब इसीलिए ब्रह्म समाज भी एक इंस्टीट्यूशन है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो ये कह रहे हैं कि जो वेदास को हम मान के बैठ गए हैं कि वेदास तो गलत हो ही नहीं सकते, इसका भी इन्होंने खंडन किया है कि डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आज के टाइम पे तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं होती। वाइल द अलीगढ़ मूवमेंट एम्फेसाइज रिकंसाइलेशन ऑफ द इस्लामिक टीचिंग्स विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्न एज। और अलीगढ़ मूवमेंट भी हुआ है जहाँ पे ये कहते हैं कि जो इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, हमें ज़रूरत है कि आज के हिसाब से, आज की मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से हम उनको अप्लाई करें। ठीक है, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है आज की सोसाइटी के हिसाब से, तो वो भी डेफिनेटली करना चाहिए। सैयद अहमद खान वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एम्फेसाइजिंग दैट रिलीजियस टेनेट्स वर नॉट इम्यूटेबल। दैट इज, धार्मिक किताबों में अगर कुछ लिखा है, उनकी कुछ जो टीचिंग्स है, प्रीचिंग्स है, ऐसा नहीं है कि वो कोई पत्थर की लकीर है कि वो तो आप मिट ही नहीं सकती, उनको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। सो अहमद खान जी ने कहा कि इनको भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है अगर सोसाइटी की डिमांड है तो। So many of the intellectuals set aside the authority of the religion and evaluated truth in any religion by the criteria of logic, reason और science. So वही चीज़ कि आपने रिलीजन को रखा साइड में, इन लोगों ने रखा रिलीजन को साइड में, और जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको, किसी भी रिलीजन का जो ट्रुथ है उसको लॉजिक्स के साथ, रीजन्स के साथ और साइंस के साथ इवेलुएट किया है। ठीक है, नाउ देखिए, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सली ट्रू है कि नहीं है, इसको आप बदल नहीं सकते, राइट। सो यू हैव टू accept those things, you have to believe those things which are universally true instead of just following blindly your religion. Now, according to Swami Vivekanand, same method of investigation which applies to the sciences should be the basis on which religion must justify itself. Swami Vivekanand जी कहते हैं, the great man, that जिस तरीके से आप साइंस में कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट है, आप पूरा एनालाइज करते हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वही चीज़ आपको रिलीजन में करने की ज़रूरत है। अगर रिलीजन में, आपके धर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई बात लिखी हुई है कि आपको ऐसे करना है, तो आपको उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए कि ऐसा करना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में औरतों को कहा जाता है कि आपको पर्दा रखना है, ठीक है, आपको पर्दा करना चाहिए। और नॉट इनफैक्ट इन हिंदू रिलीजन, एंड आई थिंक मुस्लिम रिलीजन एज वेल, वेमेन आर बाउंड टू, दे हैव टू वील देयर फेसेस, अपने फेसेस को उनको ढक के रखना होता है। अब भाई रीज़न तो बताओ क्यों करना है,
क्या ज़रूरत क्या है इसकी, तो आपको उसके पीछे के रीज़न जानने की ज़रूरत है। अब साइंस में कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्कवरी हुई है, आपको कोई रॉक मिल गया, आपने कभी बिल्कुल नहीं देखा पहले, तो आजकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, दे एनालाइज दैट रॉक कि किस क्या कंपाउंड है, क्या एलिमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन क्या, सारा इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं होता है। यही इन्वेस्टिगेशन आपको रिलीजियस टीचिंग्स में करने की ज़रूरत है। आखिर अगर वो ये बात लिख के चले गए तो क्यों, ये जो प्रैक्टिस अगर फॉलो हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। Although some reformers tended to appeal to faith and ancient authority to support their appeal, on the whole, a rational and secular outlook was very much evident. कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बदलाव लाना चाह रहे थे, वो फेथ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ठीक है, एंशियंट अथॉरिटी जो उनके एंशियंट ट्रेडिशंस हैं उनको ज़्यादा मान्यता दे रहे थे। लेकिन ओवरऑल उनका भी क्या आउटलुक था कि रैशनल आउटलुक होना चाहिए, सेकुलर आउटलुक होना चाहिए, दैट इज़ अपने हमारे जो रिलीजियस टीचिंग्स है उनका ही सहारा लेके हमें अपनी सोसाइटी को लॉजिकल बनाना है और सेकुलर बनाना है, ठीक है। जो इतना धर्म को लेके इतना डिविजन हो गया सोसाइटी में, सभी धर्म को हमको इक्वल वेटेज देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, या फिर ये कहें कि रिलीजन को यूनिवर्सल बनाना है, ठीक है। सो अक्षय कुमार दत्त अगेन कहते हैं दैट मेडिकल ओपिनियन टू सपोर्ट हिज व्यूज़। अब ये एक बहुत ही अच्छा रीजनिंग देते हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। अब आपको पता है कि चाइल्ड मैरिज अब क्यों बैन है, इसका सिंपल एक रीज़न है दैट गर्ल्स बॉडी इज़ नॉट रेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बिफोर अ सर्टेन एज। एक एज से पहले उसकी बॉडी तैयार नहीं है, हार्मोन्स उसके डेवलप नहीं हुए, सेम केसेस विद दी बॉय। तो ये उन्होंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके उसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट किया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है विच कैन बी प्रूव्ड, राइट। सो रेफरेंस टू द पास्ट वॉज टू बी यूज ओनली एज एन एड एंड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप पास्ट के किसी ट्रेडिशन को उठा के, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को उठा के आज की सोसाइटी में बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट का काम करनी चाहिए कि हाँ पास्ट में इस तरीके से होता था, आज भी हमें वही करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस के साथ शायद करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि पास्ट को हम वापस से रिवाइव करें, वो पुराने परंपराएं या पुराने ट्रेडिशंस लेके आ जाए। जैसे आज ये कहना कि वापस से सती लेके आ जाओ, इज़ इट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर आपको पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं उनकी हेल्प लेके कुछ आज की मॉडर्न सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं तो यू आर वेलकम, बट दे शुड नॉट बी अगेन रिवाइव्ड, ठीक है। नीदर अ रिवाइवल ऑफ द पास्ट नॉर अ टोटल आउटब्रेक विद ट्रेडिशन वॉज एनविसाज्ड। अब ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे इनका ये मकसद नहीं था कि टोटली आप अपने पास्ट से ब्रेक हो जाओ या फिर पास्ट ही रिवाइव कर दो। कहने का मतलब है वही पुरानी सोसाइटी, पुराने ढर्रे, पुराने तरीके वापस लेके आ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी रिलीजन में या हमारे रिलीजन क्या, ये तो हर रिलीजन की बात है, दैट यंगर पीपल दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अब इसको शो करने के अलग अलग तरीके हैं। हमारे हिंदू रिलीजन में क्या होता है, छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट करती है और एक वो एक लेवल क्रिएट करके रखती है, एक लिमिटेशन क्रिएट करके रखती है कि आप छोटे हो तो आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं और आप बड़े हैं तो आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये पास्ट की हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो गलत नहीं है और आप इसको यूज़ करके, आप इसका एग्जाम्पल्स दे के आज की मॉडर्न सोसाइटी में हाउ द यूथ आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड या फिर उनमें जो नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं वो आप सही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। तो सिमिलरली ना तो आपको अपने पास्ट से कंप्लीटली ब्रेक होना है, ना तो अभी आपको पास्ट को रिवाइव करना है। ऐसा नहीं कि पुराने इंस्टीट्यूशंस, आप सोशल इंस्टीट्यूशंस वापस लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स कीप इट टिल हियर ओनली, वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर टुमारो। इसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग विद मी, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।